Assalamu alaikum, you're watching Something Hot. This is Amna, and today we have with us the television industry's blue-eyed boy. आप सोचेंगे blue-eyed boy कौन है जो contact lenses भी नहीं लगाते और ऐसे blue-eyed boy हैं जो हर ड्रामे में एक अदद जो damsel in distress होती है उसको बचाने के लिए, सहारा देने के लिए, हर किस्म की support देने के लिए ये होते हैं. Haroon, was that an apt description? Bilkul. I recently, heard this song, and it was the poetry by the lyrics or poetry was by Munir Niazi साहब. और वो थी हमेशा देर कर देता हूँ. और जब मैंने पूरी पढ़ी तो मैंने कहा कि यार, okay, so this is probably what's been happening to me all this time. अगर मैं sum up करूँ ना of my characters that I've done. तो हमेशा देर कर देता हूँ मैं. It's such a beautiful poem. It's beautiful. And Nadeem Saab narrated it in Pare Hatlav. अच्छा. So beautifully. So there's, because I'm primarily a musician, तो मेरा ताल्लुक और ये I reached out to these things through music. Ali Parvez, who just recently did a song on, can we name Coke Studio and stuff? Course, yeah, okay. So he was on Coke Studio. And Ali of Coke Studio fame, is what I can say. तो उन्होंने ये गाया था. It's beautiful. हमेशा देर कर देता हूँ मैं. बहुत खूबसूरत नज़्म है उनकी, बहुत ही खूबसूरत है. बल्कि उनकी जब आप अपनी सुने तो कुछ आंखों में भी आंसू से आ जाते हैं. Because it's kind of bittersweet. It's bittersweet. But this is a really interesting point that you've touched upon. Musicians, actors, musicians. आजकल तो पहले musicians acting में आते थे, अब actors जो है वो music में जा रहे हैं. इस पे आपकी लेंगे advice, because you being a musician would have the right opinion of programs. Okay, but in fact, I don't have an opinion. And actually, oh come on, because I know you're not going to be diplomatic. I'll tell you what, and I'll tell you why. Because probably I know that that is going to come up at some point, my Twitter, and of course. And I don't shy away from expressing my opinion, and whether it's even talking about brands and how brands have affected the music industry, where they've supported it, they've also somehow not really cared about the actual industry and how it should work. But should they? अच्छा छोड़ दें. Okay. No, क्यों नहीं? नहीं, इस पे वापस आएंगे. The reason you're sitting here today is because of a character called Jawad. Jawad, yes. जी. And आपका ड्रामा चल रहा है आजकल क़यामत. I'm sitting here because of a character. Okay. Well, I mean, and other reasons. मगर आप अभी मुकद्दर खत्म हुआ, उसमें you played another character, and इसमें a similar character. I would say somebody who's supporting the leading lady. You're the quintessential blue-eyed boy who's lurching in the corridor to save whichever woman is in distress, usually the leading lady. और यहाँ भी यही है. So do you think that you're stuck in a good boy typecast? Frankly, yes, I do. At times, I do. तो ऐसा क्यों हो रहा है? But मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों complain नहीं करता इस चीज के बारे में. उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आज से 2 साल पहले तक अगर आप मुझसे पूछती कि यार आप एक्टिंग करना चाहते हैं या आप इंटरेस्टेड हैं या आपने कभी पाकिस्तानी ड्रामा देखा है, यार कौन देखता है? Exactly. कौन देखता है? नहीं मैं तो नहीं देखता. ठीक है ना, मैं भाग लूं, मैं काम करूंगा, ड्रामों में काम करना है. मजे की बात ये कि मैंने ये बात माहिरा खान को भी की. माहिरा, यार ड्रामा कौन करता है यार? कौन ड्रामा करता है? And this is while I'm shooting a film. And माहिरा खान ने सुन ली वो बात. और हम एक दिन खड़े हुए सेंटोरस में और पहले मैं आया, हम फिल्म प्रमोट कर रहे थे. आहिस्ता आहिस्ता नेमल आई. एंड उसके बाद मैं देखता हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता ये वो जो उसके टेयर्स थे ना ऑफ द होल मॉल, वो भरना शुरू हुए हैं और लोग भर ही जा रहे हैं. और वो जो हमारा जो स्टेज उन्होंने छोटा सा बनाया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा किया जा रहा है कि लोग आई जा रहे हैं. और फिर आती है माहिरा. और कुछ देर के बाद वो जो था ना, जो स्क्वायर था, जो स्टेज था, वो स्टेज नहीं रहा था. और माहिरा ने मुड़ के मुझे कहा कि हारून, remember, this is not my film following, this is my drama following, this is my TV following. And that's when I realized, okay, ये TV क्या चीज है, and क्या सीन है TV का. खैर, वरना हो गई
नहीं इतनी जल्दी कैसे वरना होगी, ठहर जाए जरा, रुक जाए अभी, वरना की तो मैं तो रिवर्स में चल रही थी, लेकिन आपने एक छलांग मार के आप सीधा क्यों इस अच्छा वहां तक जस्ट टू आंसर ठीक है, नहीं ठीक है हम वरना पे चले जाते हैं. I mean how great is it for an aspiring actor to land your first project with correction again, not an aspiring actor. अच्छा वैसे तो ना क्या है अब आप I had no clue that this was going to happen. The closest that I had gotten to was back in 2011 when शोएब साहब से मैं पहली दफा मिला. नहीं तो क्या आंखें बंद करके तो सेट पे नहीं गए थे ना? जो मैं कह रही हूँ कि जो शोएब मंसूर के साथ अपना पहला प्रोजेक्ट करना, I mean it's like a breakthrough project, right? To do it, and शोएब मंसूर की जो एसोसिएशन है म्यूजिशियंस के साथ, एक्टर्स के साथ, बेशक वो वाइटल साइंस के साथ थी, एंड फिर खुदा के लिए थी, और फिर बोल थी, the music was so strong, and there was always a musician. How privileged did you feel? यार again I can't be, मतलब जब मैं ये बात सोचता हूँ तो मैं अल्लाह का बहुत शुक्र करता हूँ, रोज शुक्र करता हूँ. बिल्कुल यार I got to work with people from band and again musical connection. शोएब मंसूर से मेरी ऑनेस्ट एंड जो कहते हैं ना, जो सबसे खूबसूरत कनेक्शन मुझे लगता है वो म्यूजिक के थ्रू है. बिकॉज वाइटल साइंस जब मैं सुनता था तो मैं कहता था यार ये गाने लिखता कौन है, who's the lyricist behind एतबार एंड देर हो गई, लौट आओ एंड ऑल दीस फैंटास्टिक सॉन्ग्स. शोएब मंसूर. एंड मैं 8 साल का था, सनसेट क्लब में जिंदगी में पहली दफा मेरी वालदा हमें लेके गई कि यार वो वाइटल साइंस का कॉन्सर्ट सुनना है. मैं कह रहा हूँ यार ये कौन लोग हैं यार. And move on to like around 22 years later, and मैंने रोहिल हयात से मिला. मैंने कहा यार one down. मैंने शाही हसन से मिला. He worked on my first song, he mastered that song मेरा बैंड का. 2011 में मैं शोएब मंसूर से मिल लिया, और वो मुझे कह रहे हैं कि, और मैं जा रहा हूँ बड़ा तैयार होके कि when I got a call I was like oh so maybe he wants to do some music with me यार. तो मैं अपना गिटार बैग लटका के जा रहा हूँ उनके पास, और वो मुझे आगे से एक पेपर पकड़ाते हैं. मैंने जिंदगी में पहली दफा कहा ये क्या है. सो इन्होंने कहा ये पढ़ें आप. तो वो स्क्रिप्ट थी एंड आई डोंट रिमेंबर व्हाट इट वाज, बट आई वाज हॉरिबल एट. उन्होंने कहा इसको याद करें और जरा करें. And मैं वहां से उठ के चला गया, and I didn't care, and I was like कि पता नहीं यार, मैं तो समझा था. You didn't realize how lucky you were at that point. लोग मरते हैं इस opportunity के लिए. मैं honestly देखें वो तब भी कि उन्होंने कहा आप एक्टिंग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते. मैंने कहा शोएब साहब नहीं. और वो उसकी वजह ये थी कि we had just gotten on to Coke Studio as a band. I had a band called Sim. जी. And you know we were a new band 2010 में जब इंडस्ट्री खत्म हो रही थी तो तब हम आ रहे थे उसमें. And मैंने कहा यार मैं तो गाना गाऊंगा और मैं ये करूंगा. तो वो वक्त चला गया. उन्होंने कहा हारून हम कभी जिंदगी में काम करेंगे. तो मैंने कहा ओके. 3-4 साल 5 साल गुजरे और मैं एक नौकरी कर रहा हूँ, 9 to 5 जॉब. शाम को कभी कभार म्यूजिक कर लेते हैं, वीकेंड पे अगर कोई कॉन्सर्ट आ जाए तो बजा देते हैं और कहते हैं कि यार हम तो म्यूजिशियन है पाकिस्तान में. एंड आई एम नाउ थिंकिंग कि यार फिल्म करनी, अल्लाह करे कभी शोएब साहब फॉल कर ही लें, you know maybe I can act and maybe help my music career. And I got a call from Shoaib Mansoor. One fine day I got a call and he's like हारून आप मुझसे मिलने आए. बड़ी बात है, अब बड़ी बात है. म्यूजिक ये होने लगा. और But why do you think that call came to you? Because आपकी एक्टिंग में तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था. बिल्कुल भी नहीं था. तो फिर आपको क्या लगा, क्यों ये कॉल आपको आई? ये शोएब मंसूर साहब से पूछे आप.